નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ. હું છું પ્રીતિ. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે શપથવિધિનો કાર્યક્રમ, જેમાં મુખ્યમંત્રી પદે શુભેન્દુ અધિકારીની આજે તાજપોશી કરવામાં આવશે. આજે કોલકાતાના બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં શપથવિધિનો કાર્યક્રમ 11 વાગે છે અને અત્યારથી જ ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ કાર્યકર્તાઓ જે છે તે બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે. જ્યારે અભિનેત્રી રૂપા ગાંગુલી એ ડેપ્યુટી સીએમ તરીકે શપથ લેશે. બંગાળમાં 2 નાયબ મુખ્યમંત્રી પણ શપથ લેશે. સાથે શુભેન્દુ અધિકારી સાથે મંત્રીમંડળ પણ શપથ લેશે. અને આ પ્રસંગે પીએમ મોદી, અમિત શાહ, નીતિન નવીન પણ ઉપસ્થિત રહેશે. ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એનડીએ શાસિત 20 રાજ્યના સીએમ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે. પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની ભવ્ય જીત અને ઐતિહાસિક જીત થઈ છે અને પહેલી વખત પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ શાસિત મુખ્યમંત્રી જે છે તે બનવા જઈ રહ્યા છે શુભેન્દુ અધિકારી, જેમણે પશ્ચિમ બંગાળમાં ગ્રાઉન્ડ લેવલથી કામ કર્યું. 2011થી શરૂઆત કરીને 2016-2021માં જે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મહેનત કરી અને એ મહેનત આખરે 2026માં રંગ લાવી છે અને 294 વિધાનસભા બેઠકો ધરાવતી પશ્ચિમ બંગાળની આ વિધાનસભામાં 208 બેઠકો કબજે કરી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ભવ્ય જીત હાંસલ કરી છે. ત્યારે ઘણા બધા નામ આમ તો ચર્ચામાં હતા. રૂપાલી ગાંગુલી કે જેમણે મહાભારતમાં દ્રૌપદીનો રોલ કર્યો હતો, તેઓ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સીટ પરથી જે છે એ ચૂંટણી લડ્યા હતા. સાથે શુભેન્દુ અધિકારી નંદીગ્રામ ભવાનીપુર બેઠક પરથી ચૂંટણી લડ્યા હતા. શુભેન્દુ અધિકારીએ છેલ્લા 5 વર્ષમાં જે ગ્રાઉન્ડ લેવલનું કામ કર્યું હતું, કારણ કે 2021માં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર નહોતી બની, પરંતુ અહીંયા જે સીટમાં વધારો થયો હતો, 77 બેઠકો મળી હતી. ત્યારબાદ 5 વર્ષ જે ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યો, જે ગ્રાઉન્ડ લેવલનું કામ કરવામાં આવ્યું અને તેના જ કારણે આજે મુખ્યમંત્રી પદે શુભેન્દુ અધિકારીની તાજપોશી થઈ રહી છે. तपस्या करना पड़ा, उसका परिणाम आया, परिवर्तन हुआ, लोगों की इच्छा पूरी हुई. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था उसको पूरा करना, लोगों का सपनों का पूरा करना और हमारे बलिदानी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने का भी काम बाकी है. बहुत बड़ा चमत्कार किया भवानीपुर के लोगों ने. बंगाल के लोगों ने जिस प्रकार रिस्क लेके डिटरमाइंड होकर वोटिंग किया है, उसका परिणाम है बीजेपी 2 से ऊपर सीट मिली बीजेपी को. बंगाल हमारा अंतिम लड़ाई था. पूरा देश जीत चुके हैं हम, इसलिए करीब 20 मुख्यमंत्री आज हाजिर रहेंगे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री उसका शपथ ग्रहण करेंगे. ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा और मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ा हम लोग. જે તપસ્યા કરવામાં આવી છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ નેતાઓની તપસ્યા રંગ લાવી છે, પરંતુ અહીંયા શુભેન્દુ અધિકારીની તપસ્યા પણ રંગ લાવી છે. એનું કારણ એ છે કે 2020માં એ પહેલા તેઓ તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં હતા. મંત્રી તરીકે ખૂબ જ પ્રભાવશાળી પોતાની ફરજ નિભાવી ચૂક્યા છે, કામ કરી ચૂક્યા છે. પરંતુ 2020માં જેમણે જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી જોઈન કર્યું, ત્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે જે અલગ અલગ જમીની ક્ષેત્રે જે તેમણે કામ કર્યું છે, જેના જ કારણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના તેઓ શક્તિશાળી નેતા સાબિત થયા. ત્યાં સુધી કે 2021માં જ્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાઈ હતી, એ વખતે તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં એટલે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતા બેનર્જીની એક લહેર હતી, મમતા બેનર્જીનો એક જાદુ હતો અને એની વચ્ચે મમતા બેનર્જીને તેમણે નંદીગ્રામ બેઠક પરથી હરાવ્યા હતા અને એ વખતે તેમના 77 જેટલી બેઠક ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પ્રાપ્ત કરી હતી. પરંતુ એક લક્ષ્ય રાખ્યો હતો કે 2026માં એટલે 5 વર્ષ પછી ઇતિહાસ રચાશે અને એટલા જ માટે જમીની સ્તરે કામ કરવું, સ્થાનિક લોકો સાથે સંપર્કમાં રહેવું, એમની બોલી બોલવી. શુભેન્દુ અધિકારી જે 5 વર્ષ મહેનત કરી, આખરે તે રંગ લાવી છે. दिल्ली थी अजय यादव हमारी साथ लाइव जुड़ाई चुका है. अजय, जिस प्रकार से जितनी मेहनत शुभेंदु अधिकारी ने की है भारतीय जनता पार्टी के लिए और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो मेहनत थी, जो जमीनी स्तर पे काम किया गया है और आज भव्य जीत तो हासिल की गई है, लेकिन इतिहास रचने जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के. क्या कुछ जानकारी एक कार्यक्रम को लेके? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास रचने जा रही है, या कह सकते हैं कि इतिहास रच चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पहली बार पश्चिम बंगाल में
260 सीटें मिली हुई हैं और ऐसा कभी कल्पना नहीं किया जाता था कि पश्चिम बंगाल में कभी भी भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब आ चुकी है। आज 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और इस समारोह को काफी भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और इसी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन और 20 राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सारे लोग आ रहे हैं और खास करके कई गणमान्य व्यक्ति भी इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए उनको न्योता दिया गया है। कई सारे नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें जेपी नड्डा तो कल ही पहुंच चुके थे क्योंकि वो पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं और उन्हीं की तरफ से जेपी नड्डा पहले ही पहुंच चुके हैं और अमित शाह का जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे उन्हीं की तरफ से जो विधायक दल की बैठक हुई थी और उसी में फैसला लिया गया था एक स्वर से कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर होंगे। और खास करके नेताओं के आने के सिलसिले की अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, नितिन नवीन पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे के करीब ठीक जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके ठीक पहले पहुंचेंगे। और शुभेंदु अधिकारी चूंकि अभी अपने घर पे हैं और कहा जा रहा था कि वो एक मंदिर में जाकर के पूजा करेंगे, लेकिन चूंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो चुका है तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मंदिर में पूजा के बजाय वो घर में ही पूजा करके सीधे जो ब्रिगेड मैदान है जहां पर आज शपथ ग्रहण समारोह है वहां पर वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि जब वो टीएमसी में थे तब भी इसी तरह से संघर्ष करते हुए नजर आते थे। यहाँ तक कि नंदीग्राम में जब सिंगूर का आंदोलन हुआ था उस वक्त भी सबसे बढ़ चढ़ के भूमिका उन्होंने निभाई थी। खास करके 2020 में जब अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, जब उनको तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आगे किए जाने लगा, ये बात कहीं न कहीं शुभेंदु अधिकारी को पसंद नहीं आई और उनको लगा कि ये कहीं न कहीं भाई भतीजावाद है और फिर वही जो 2007 में उन्होंने नंदीग्राम में संघर्ष किया था उसी तरह का संघर्ष उन्होंने तृणमूल के खिलाफ करना शुरू कर दिया था। हालांकि पहले वो पार्टी की गतिविधियों में धीरे धीरे अपने आप को काटने लगे थे, लेकिन बाद में वो सीधे तौर पे उन्होंने बगावत की और सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़ गए और 2021 में जब चुनाव परिणाम आए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 77 सीटों पे कब्जा किया था। तो वहीं से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत नींव पड़ी थी जिसको कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने या अमित शाह ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब अच्छी तरीके से पहचान लिया था और शुभेंदु अधिकारी को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दी जाने लगी थी। यहां तक कि जब इस बार विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो उस वक्त भी कंधे से कंधा मिलाकर के अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी या जगह जगह घूम के प्रचार करते थे और कई जगहों पर तो ऐसा भी होता था कि शुभेंदु अधिकारी बिना किसी आयोजन के किसी भी एरिया में पहुंच जाते थे और जो भी छोटी उससे बड़ी सभाएं होती थी लगातार करते थे। यहां तक कि उन्होंने ममता बनर्जी का इस तरह से पीछा किया कि न सिर्फ वो 2 जगह से नंदीग्राम से विधानसभा का चुनाव लड़ा बल्कि भवानीपुर से चुनाव लड़के उन्होंने ममता बनर्जी को हराया। बल्कि ममता बनर्जी जहां जहां पे कैंपेन करने के लिए जाती थी वहां पर शुभेंदु अधिकारी पीछे पीछे से आते थे और लगातार कहते थे कि हिंदुओं को कोई भी धमका नहीं सकता और हिंदू अब दब के नहीं रहेगा, अपने राइट के लिए वो लगातार संघर्ष करेगा। तो इस तरह की बातें भी करते थे। तो वही संघर्षशील शुभेंदु अधिकारी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल में पहले भाजपा के सीएम बनने जा रहे हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि पश्चिम बंगाल के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और ढोल नगाड़े बज रहे हैं और लोग कहीं न कहीं इस शपथ ग्रहण समारोह को काफी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा अजय। तो जे प्रमाणे આજે એક શક્તિ પ્રદર્શન ન માત્ર શપથ ગ્રહણ પરંતુ શક્તિ પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે। શુભેન્દુ અધિકારી પશ્ચિમ બંગાળમાં 11 વાગે મુખ્યમંત્રી પદના શપથ ગ્રહણ કરશે અને તેની સાથે તેમનું મંત્રીમંડળ પર શપથ ગ્રહણ કરશે। મમતા બેનર્જીને માત આપીને શુભેન્દુ અધિકારીએ જે મહેનત કરી અને આખરે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બની ગઈ છે પશ્ચિમ બંગાળમાં।